Hello, good morning everyone. We are studying our chapter number 4, Thinkers, Beliefs and Buildings. We have reached on our last topic, the growth of Pranic Hinduism and building temples. तो इसमें हम देखेंगे कि जो प्राणिक हिंदुज़म है इसकी ग्रोथ कैसे हुई और जो अर्ली टेम्पल्स थे उनकी क्या फीचर्स थी. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. द ग्रोथ ऑफ प्राणिक हिंदुज़म. ये जो नोशन ऑफ सेवियर है ये बुद्धिज़्म में जो यूनिक नहीं थी. ओके, वी फाइंड सिमिलर आइडियाज़ बीइंग डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज विद इन ट्रेडिशन दैट वी नो कंसिडर पार्ट ऑफ हिंदुज़म. ये एक हिंदुज़म का ही पार्ट माना जाता है. ओके, तो इसमें दो चीज़ें डेवलप हुई प्राणिक हिंदुज़म में. फर्स्ट वाज वैष्णविज़म, okay, in which Vishnu was worshipped as the principal deity, and Shaivism, second one Shaivism, जिसमें जो लॉर्ड शिवा है वो एक चीफ गॉड के रूप में माने जाते हैं. मेन एम्फसिस was given on the worship of the chosen deity. In such worship, the bond between the devotee and God was visualized as one of the love and devotion of bhakti. Means जो चुने हुए देवता है उनकी सच्चे मन से भक्ति करनी, उनके प्रति लव डिवोशन की भावना रखनी, ये चीज़ डेवलप हुई ड्यूरिंग द प्राणिक हिंदुइज्म में. 10 अवतार्स ऑफ विष्णु वर recognized within Vaishnavism. These were forms that the deity was believed to have assumed in order to save the world whenever it was threatened by disorder and destruction because of the dominance of evil forces. समय समय पर जैसे इस धरती पर जो अत्याचार बढ़े तो उसमें दुनिया को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए सेवियर के रूप में भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लिए. ठीक है. It is likely that different avatars were popular in different parts of the country. Recognizing each of these local deities as form Vishnu was one way of creating a more unified religious tradition. Shiva was symbolized by link. He was occasionally recognized in human form also. This tradition of Vaishnavism and Shaivism also impacted the tradition of architecture and sculpture. Okay, then we will see the building temples. The first temples were built to house the images of gods and goddesses. The early temple was a small square room called Garbhagriha with a single doorway for the worshipper to enter and offer worship to the image. Gradually, a tall structure known as Shikhar was built over the central shrine. Temples were generally decorated with sculpture. Later temples became far more elaborate, with assembly halls, huge walls and gateways, and arrangements for supplying water. One of the unique features of the early temples was that some temples were hollowed out of huge rocks as artificial caves. एक बार दोबारा से कंपोनेंट्स ऑफ टेम्पल देख लेते हैं. गर्भगृह, a room in the temple where the chief deity was placed. Then Gopuram, entrance gateway of temple enclosure. Then Shikhar,
A tall structure known as Shikhar was built on the top of the Garbhagriha, then Mandap, a hall where people could assemble. These were the components of temple. You can see here also in this picture. ये मीनाक्षी टेम्पल मदुराई का गोपुरम है. देन रॉक आर्ट टेम्पल. टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ ह्यूज रॉक एज आर्टिफिशियल केव. तो ये कैलाशनाथ टेम्पल इलोरा महाराष्ट्र का है, जो कि एक सिंगल पीस ऑफ रॉक से बनाया गया है. तो अब इस टॉपिक की कुछ होम असाइनमेंट्स बनती हैं, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फर्स्ट इज़ एक्सप्लेन द राइज ऑफ पुरानिक हिंदुज़म एंड सेकंड वन राइट द फीचर्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. ओके, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि जैसे कि CBSE का एग्ज़ाम पैटर्न जो है चेंज हो चुका है लास्ट ईयर से. 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए जो टेक्स्ट बुक रीडिंग है ये बहुत मस्ट है. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे टेक्स्ट बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए. उसका एक तरीका है कि आप अपनी बुक लीजिए, ठीक है, साथ में पेन रखिए, पेंसिल रखिए, कॉपी रखिए, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं तो चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए. ऐसे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे नोट्स बन जाएंगे, ठीक है, जो कि बाद में आप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम आप उसको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं. ओके, तो जो 1 मार्क क्वेश्चन हैं ये मार्क्स कम भी कर सकते हैं और मार्क्स बढ़ा भी सकते हैं. मीन्स दीज 1 मार्क क्वेश्चन क्रिएट द डिफरेंसेस. ओके, तो बुक रीडिंग कीजिए अच्छे से, नोट्स बनाइए. ओके, ये चैप्टर्स दोबारा से आप देख सकते हैं, और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है और आप इसमें गुड स्कोर प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.